वेल वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक साल पहले हम लोगों ने कैलिडोस्कोप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो साइट यूट्यूब साइट ओपन अप किया था और हम काफ़ी चीज़ों पे आपके साथ बातचीत करते रहे। एंड देन इट हैज़ बीन 5-6 मंथ्स के अब एक ये कोरोना नाम का पैंडमिक जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया और काफ़ी चीज़ें उसने रोक दी। But today we are again strong. We want to come back and we want to again reopen a new chapter of Kaleidoscope. In all these times जब ये पूरा पैंडमिक हो रहा था तो दुनिया में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, you know. So let's talk about the positive things of life. For example, food and health. For example, the fact कि अब nature और environment इतना सुंदर और bright हो गया है कि you know we are proud of the great skies that we can see. Let's talk about heritage, let's talk about fabric, and to do that you know we are so happy अब Kaleidoscope एक expert panels को बुलाकर we want to hear about some very positive aspects of life from them. And today we have amongst us a very old friend, a very dear friend, Tuli Banerjee. Hi. Good morning Tuli, nice to meet you. Good morning. Hi everyone. So before she starts her thoughts, let me tell you she has been an eminent journalist in a national publication called DNA and has been writing a lot you know about entertainment and all the interesting facets of life. And today she is an influencer, she is a writer and blogger, she is a relationship expert, but we are here today to know something very interesting about you Tuli. Right. We heard के biting bowl करके एक movement जो almost 2004 में शुरू हुआ, 2006 में उसको Facebook के अंदर it started coming in. Yes. I think you joined in around 8 years back in this movement. Post my journalism. Post your journalism. So tell us a little bit more about what's Biting Bowl and. Sure. Yeah. So Biting Bowl is an online platform on food, fashion and lifestyle. And so present, it was founded by my partner Satyen Gadvi, who is a government employee. So he has been a very expert and enthusiastic about the history of food and how it has evolved. Say for example samosa सिर्फ इंडियन नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड मिलता है. इनफैक्ट मोमोज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ समोसा. एंड कहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे लेके आए थे समोसा को. सो इस तरह के जो इंटरेस्टिंग ट्रिविया हैं जो हम हर रोज़ खाते तो हैं समोसा बट हमको पता नहीं है. सो these are all the knowledge which he has and which actually, and I have also been a restaurant reviewer right from my journalism days. So I was very interested, and we both, when we saw how we have been working in our own fields, so we thought of integrating and joining together, and hence I joined Biting Bowl. So presently so Biting Bowl focuses on food, again on fabric and heritage of India. So we try to see how it has evolved and how it all three integrate with each other. And we also want our audience, people to know that how किस तरह से हमारा heritage और food और मतलब इस तरह से साथ में चलते हुए आया है. And even the fabric, like अभी recently हैंडलूम डे जो सबने सेलिब्रेट किया, but sadly very few people knew कि हैंडलूम का जो बोर्ड है वही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है. तो वो जस्ट सेलिब्रेट के लिए एक साड़ी पहन के सेलिब्रेशन कर लिए वो नहीं है. वी हैव टू सी हाउ वी कैन हेल्प आउट द वीवर्स, आर्टिसंस, एंड टू द पॉइंट किस तरह हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं. सो दैट इज आवर प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस. सो ग्रेट. हमारी जर्नी तुली समवेयर इट मीट्स in the sense that I am a Bengali, you are a Bengali. Yes. And we are from the city of joy. Right now we are sitting in the city of entrepreneurs. Absolutely. Where there are so many new things and creative things coming in. True. Food की बात करें तो जब आप कलकत्ता की बात करते हैं, स्वीट्स और वहाँ के जो अलग अलग cuisine है, एक अलग ही छवि हमारे माइंड में आती है. Yes. But I feel that in गुजरात जो गुजराती लोग जिस तरह से because of the vegetarian culture, उन्होंने जिस तरह से शायद ग्रासरूट लेवल से हेल्दी फूड क्या होता है, दे अंडरस्टैंड अ लॉट इन देयर एंटायर थिंग. सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस to understand the Gujarati cuisine? True. So of course we can never say कि कोई सिटी में कुछ स्पेशलिटी नहीं है. हर सिटी में उसकी खुद की स्पेशलिटीज़ है. एंड गुजरात एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे बाहर से कोई भी आता है तो उनको वो यहाँ का खाना पसंद ही आता है. everyone vouches for a गुजराती थाली. एंड खमन हो गया, फाफड़ा हो गया, ढोकला हो गया,
तो पीपल लव इट सो, आई मीन जैसे कोई सिटी की जो डिशेस होते हैं वो शायद इतना इजीली लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते या फिर वो टेस्ट नहीं डेवलप कर पाते। हम बंगाली हैं, लेकिन बंगाली का सरसों का तेल जो है वो काफ़ी लोग यहाँ के लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। बट गुजरात का जो कोई भी आप फूड आइटम पकड़ लीजिए, इट इज़ वेरी ईजी टू ईट एंड पीपल रियली रिलिश इट अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द मे बी द ऑयल यूज एंड मे बी द ईजी। ज़्यादातर सब चीज़ें बेसन का बनता है। सो दैट्स हाउ इट्स रियली। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दैट अगर आप ये सोचते हैं कि गुजरात में आने के बाद, अहमदाबाद में आने के बाद आप सिर्फ वेजिटेरियन फूड एंजॉय कर पाएंगे और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जी नहीं है, विल बी वेरी मच मिस्टेकन। जिस तरह से यहाँ धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिस तरह से गुजराती कल्चर हर दूसरे कल्चर को अपने आप में ढाल लेता है, आई थिंक दिस इज टुडे वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द होल कंट्री, जहां आप खुले दिल से जो है हर धर्म, हर रिलीजन, हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं हम आएंगे आपके साथ थोड़ी हेरिटेज की बात करने के लिए। यूनेस्को का अकेला शहर अहमदाबाद, जिसको यूनेस्को का एक हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। What does Biting Bowl want to do about the heritage? How do we want to? We really want to revive a lot of places, a lot of lost places. गुजरात में जैसे कि पावागढ़ है, चांपानेर है, तो मैं रिसेंटली ऑलमोस्ट साल भर हो गया उसको भी मैं विजिट करने गई थी। एंड बहुत सैड पार्ट है कि हमने डेफिनेटली उसको यूनेस्को में दर्जा तो मिला है, बट अभी भी हम जब जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल जो मॉस्क है या फिर वो लोकेशंस जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो ताला पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो लोग सिर्फ एक मॉन्यूमेंट देखते हैं, बोलते हैं अच्छा यही चांपानेर है, बट इट इज़ ह्यूजली स्प्रेड इन 4 किलोमीटर्स और मोर देन दैट। तो वो उसको हमको किस तरह रिवाइव करना है, किस तरह हम पीपल को ला सकते हैं एंड वो पुराना, इनफैक्ट किड्स ऑल्सो एंजॉय, वी नीड टू मेक देम अप्रिशिएट आवर ओन ब्यूटी, आवर ओन हेरिटेज। सो मे बी वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी अब कोविड नेगेटिव हो गए हैं, उन्होंने खुद उठकर जो है खुशबू गुजरात की एक एम्बेसडर कैंपेन शुरू किया था। बट बिलीव मी, उन्होंने जितनी जगह को कवर किया है ना, दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना कुछ छुपा है गुजरात के हेरिटेज में, और हमें जरूरत है कि हम मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर उसको आगे किसी तरह ले जाएं और इनकी चीजों को इम्पोर्टेंस को समझे। एंड नाउ वी कम टू अनदर पार्ट ऑफ द हेरिटेज, जो हम कहते हैं कि पाटन के पटोला साड़ीज। And then you think about fabric. Yes. So what is the fabric angle of Biting Bowl? Fabric, again, we really love to appreciate the artisans and weavers and उनकी जो stories होती है। दुकान पे तो सब कुछ मिलता है और आजकल ऑनलाइन होके बहुत ईजी हो गया है। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए हैं कि साड़ीज़ के फोटोज़ भेज देते हैं, आप खरीद देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो वी वुड लाइक टू मेक सम, हम कोई विजिट्स बना सकते हैं कि सिटी में अगर पटोला है तो हम पाटन जाके वो देख सकते किस तरह से आर्टिसन वीव करता है। एक साड़ी बनने में कभी कभी 4 हफ्ते लग जाते हैं। उतना जब मेहनत जाता है, हम उसका भाव एकदम गिरा के बोलते हैं कि आप यही भाव पे दे दो हमको, दैट इज़ रियली नॉट डन एंड दैट इज़ द रीज़न दीज आर्ट आर डाइंग। मैं कैलकाटा गई थी तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव में गई जहाँ पे ये वीव करके तांत की साड़ीज़ बनती है। वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द वीवर्स ने वो छोड़ दिया है। दे आर नाउ इनटू हैंडलूम, पावर लूम, कि वो इजीली बन जाता है, दिखता तो मतलब डिज़ाइन दिखता ही है और लोग खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भाव कम करने लगे हैं। एंड एक तांत की साड़ी बनने में 3 से 4 दिन लग जाता है, इतना मेहनत लगता है। एंड लोग बोलते हैं कि 500 में खरीद लो। Let me tell you one interesting thing here. I had been to the Patola Center of Patan, और मैंने भी मजाक में जब उनको बोला कि चलिए आप मेरे से एक साड़ी का ऑर्डर ले लीजिए, तो बिलीव मी, दे लुक एट देयर साड़ीज एज द मर्सिडीज एंड BMW ऑफ फैब्रिक एंड टेक्सचर। दे सेड कि सर ये आपके जो है रेंज के बाहर है, औकात के बाहर है, हम साड़ी का भाव नहीं कम करेंगे, लेकिन आप इस तरह से जब हमसे बात करते हैं तो आपका जो भाव है, आपका मोल है, वो दिखने लगता है। So I think the artisans really should get their entire thing. So I will like to tell you, Tuli, that this entire group called Kaleidoscope, इसमें हमारे पास कुछ expert designers हैं, social media के experts हैं, we have some PR and communication people who are good in events and communication. एक Public Relations Society of India है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। We can take this entire movement nationally. हम बिल्कुल चाहेंगे कि Biting Bowl के जो members हैं उनको आप एक क्लब की तरह जोड़ें, वो हमारे कैलिडोस्कोप के साथ जुड़ें, and together we can explore lot many facets of life and help
what is the future of Biting Bowl? How do you see it coming up? We want, again coming back to the same topics of, fabric, heritage and food. So we would want these industries to have a sustainable growth. That is our focus in the coming years. Right. कि किस तरह हम इंडस्ट्रीज को साथ में ला सकते हैं, बिकॉज अगेन जैसे आपने चालू किया बोलना कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारा इफेक्ट हुआ है. रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैडली हिट इंडस्ट्रीज. सो डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग टुवर्ड्स इट, सो दैट उसका ग्रोथ धीरे धीरे बेटर की Thank you तरफ so जाए. much, friends. As you can see, Tuli ji, has been a very wonderful and humble being from the day I know her. She has been a great influencer. So she was just telling me कि जब वो कुछ फूड को एंजॉय करके, किसी जगह को एंजॉय करके जब वो पोस्ट करते हैं बाइटिंग बाउल में, एंड पीपल दे स्टार्ट फॉलोइंग हर, as a food fashion statement, you can say that if she has written something and if Biting Bowl has vouched कि ये चीज़ जो है सही है, then we should follow it as a food fashion. Similarly, I can see in the Biting Bowl जो Facebook के pages हैं, lot of people with all zeal and passion, वो नए नए cuisines, नई उनके experiments, इस pandemic के time पे घर पे बैठ के भी hope, health, the positive aspects, they have been posting it. Biting Bowl has been taking a note of it. Now I think it's time that we should look at the world in a positive frame of mind. बिल्कुल. We understand the secrets of our life, और हम इसको जोड़ के एक potent force की तरह जो है सामने आए. Great. So I wish all our viewers here that keep on following us, looking at what our channel is presenting to you. We will have lot of positive experts like Tuli, who is today with us, to come and share their secrets of life with us. And we wish you all the best, Tuli, for all your ventures. Thank you so much, Shubhajit. It was a wonderful pleasure coming here. We feel we will, keep this movement. Keep on collaborating more. Absolutely. Yeah, definitely. Thank you. Thank you, friends. Thank you. Bye.